So everyone note down the index: anarchy, monarchy, constitutional monarchy, oligarchy. I am switching off this light so that you can have a better view of board. Okay. Because of this, you can have some better view of the board. Now I think board will be more visible to all of you. So anarchy, monarchy, then constitutional monarchy. When it's done, just write down in the chat box that you have completed writing the index of the topic. Oligarchy, aristocracy. Oligarchy, aristocracy. Dictatorship versus totalitarian form of government. Democracy, which is of two types: direct democracy, indirect democracy. This indirect democracy is of two types: parliamentary system and presidential system. Then parliamentary system is again of two types: prime ministerial government and cabinet government. And finally, we will see the difference between police state, welfare state, and soft state. So every one of you will complete writing the index, then I will move ahead. I am giving you 2 more minutes. Yes. So we'll start. I will be going on and you will be writing down. First, we will see anarchy, monarchy, aristocracy, oligarchy, and democracy. Then democracy, direct and indirect. Indirect democracy is of two types: parliamentary system and presidential system. Parliamentary system is of two types: prime ministerial government and cabinet government. So this topic is forms of government. What is the topic? Forms of government. So since time immemorial, whenever humans are there, there is always a kind of government. So whatever be the period in the human history, some form of government existed, whether it's ancient history or modern history. By form of government, I mean who does it operate day by day? Who is in charge of the governance? What happens if public is happy with them? Can government do what it wants to do? These are the answers which you will get after completing the topic. So first we will see anarchy, monarchy. Then we will see difference between monarchy and absolute monarchy. Then absolute monarchy and constitutional monarchy. Then we will see the examples. Then we will see monarchy, aristocracy, tyranny, and oligarchy. This monarchy gets converted into tyranny, and aristocracy gets converted into oligarchy. This is just an overview. I am coming into it. So monarchy converts into tyranny and aristocracy gets into oligarchy. Then sometimes monarchy gets converted into tyranny, tyranny gets converted into dictatorship, and then totalitarian form of government. Sometimes aristocracy will get converted into oligarchy, then dictatorship and totalitarian form of government. Then these are certain examples, and some YouTube videos are also there. We will be seeing one by one. Okay, so I am coming back to the topic. So if any one of you has not written it, please note it down. Ayushi, do it fast and keep this index while I am explaining you, so that you can maintain the flow in the lecture and you can know, because all these topics are not different, they are interrelated. Okay, on your confirmation to me on the chat box, I will start teaching. So this is the index. Okay, class. And if possible, start your video so that I can also see you and we can have an interactive class.
On your confirmation in the chat box, I'll start teaching. Done. Very good, Ayushi. Rest of the students, are you done with? Very good, Divya. Very good, Survi. So, be with the teacher. Okay, anytime you are left out, you can tell me, and if possible, please start your camera so I can also see you back. Okay? Yes. Now, see, who has power in the society? Okay? Who has power in the society? यहां पे लिखो, who has power in the society? There are situations where only one person will have the power, only few people will have the power. Who has power? So what are the possible situations if someone will ask you who has power in the society? So there is a situation, okay, Shurbi, no doubt, if it is not possible, other students can start your camera if it is possible. Who has power in the society? No one in the society has power, or only one person has the power, or few people will be having power, or all the people in the society are sharing the power. So these are the four possible situations which we can have in the society. If someone will ask you the question, who has power? So when a society where no one has the power, such form of government is called anarchy. इसको हम क्या कहते हैं? एनार्की. तो किसी के हाथ में पावर नहीं होता है तो कहते हैं ना सोसाइटी में एनार्की फैल गई, लॉलेसनेस, रूल ही नहीं है कुछ भी, लॉलेसनेस, रूल हो जाता है सोसाइटी में. एनार्की. इफ ओनली वन पर्सन इज हैविंग द पावर, then such a situation it is called monarchy. If few people are having power in the society, this kind of situation is called aristocracy. इसको क्या कहते हैं हम? Aristocracy. And if all the people in the society share power, it is called democracy. We are living in democracy, so we all people, citizens of India, we share power. And then we elect our representatives, that are MPs and MLAs, who will exercise the power on behalf of us, but power is with people only. Okay, so these are the four possible situations. Now, you can see here one thing. See, archy means rule. Cracy means rule. Cracy means rule. Archy means rule. Anarchy means no one rules. Mono means one person rules in the society. Aristocracy means aristocrat. Aristocrats, elite people are always in large number or few, it's always few. So this is called when few people in the society will control the power. This kind of form of government or the form of organization of the power structure in the society is called aristocracy. And then demo means people. Study of demography, आपने geography में पढ़ा होगा. Demo means people means all. So when all the people will have the power, such form of government is called democracy. This is called democracy. Now, there is another concept related to aristocracy, that is oligarchy. तो इसको हम अभी नोट करके लिखेंगे. फिर ये जो मोनार्की है, ये दो टाइप्स की होती है.
एब्सोल्यूट मोनार्की and another one is constitutional monarchy. जैसे यूके में है अभी, इंडिया में जब हुमायूं, बाबर, अकबर, अशोक ये सब रूलर्स होते थे तो एब्सोल्यूट मोनार्की है। फिर जैसे जैसे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन आता गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता गया, तो यही एब्सोल्यूट मोनार्की किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। फिर ये जो डेमोक्रेसी है ये दो टाइप्स की है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये सारा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर मैं स्ट्रक्चर को एलिब्रेट करता जाऊंगा जिससे आपको लेक्चर में लिंक रहेगा। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, आपको पूरा लिखना है। सो इफ यू आर रेडी विद द स्ट्रक्चर देन आई विल स्टार्ट टीचिंग। यहां पे आर्की मीन्स रूल, ओलिगैर्क मतलब रिच लोग, ये रिच लोग ओलिगैर्क ये भी बहुत ही कम होते हैं, तो इसको बोलते हैं ओलिगैर्कियन और एरिस्टोक्रेसी। दोनों फॉर्म में क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। और ये जो सिस्टम है एब्सोल्यूट मोनार्की, ये एब्सोल्यूट मोनार्की का ही मॉडिफाइड वर्जन है। कैसे ये मैं अभी सारा समझाता हूं, तो ये हम देखेंगे। फिर ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये दो टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। थोड़ा रिपीटेशन होगा, होने दो, क्योंकि स्ट्रक्चर एक बार बैठेगा दिमाग में तो ही हमको समझ में आएगा। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम दो टाइप की होती है, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। ओके, so class, are you done with the structure? Shall I move ahead? On your confirmation I shall move ahead. Okay, very good Rachna, Survi, thank you for confirmation. So these are the forms of government which we are going to study. Now in anarchy no one rules, in monarchy only one person will have the power, or aristocracy or oligarchy mein very few people will have the power, and in democracy all people will be having the power. In modern times we have witnessed a situation called military junta. So military junta is also a form of government where few military rulers will be grabbing the power. So it's a modified version of aristocracy or oligarchy in modern forms. Okay, so एक इसको नोट करके रख देना, हम ये आगे देखेंगे। Now first we will understand the absolute monarchy and how this absolute monarchy is different from the constitutional monarchy. फिर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। यहां पे ऑल पावर्स, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव प्लस जुडिशियल पावर, तीन टाइप के होते हैं, हमने देखा था ना, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर्स। फिर मॉन्टेस्क्यू ने थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें ऑल थ्री पावर्स आर सेग्रीगेटेड। बट whenever there is absolute monarchy, all these three kinds of power were concentrated in a single institution called king. फर्स्ट। दूसरा, ये जो किंग के पावर्स है इसके ऊपर किसी का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस पावर्स वर अनलिमिटेड। King's power are not restricted by any written document or anything. It dependent on the king. There was religion, prevalence of religion, according to which king used to govern.
एंड इट्स वायलेशन और सेंशन, कभी भी रिलीजन का वायलेशन होता था तो वो किंग के पर्सनालिटी पे ऊपर डिपेंड करता था, उसको फॉलो करना है कि नहीं करना है। एज सच किंग के पावर्स पे कोई लिमिटेशंस नहीं था, तो किंग के पावर्स अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स थे। तो जब ये अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स होते हैं तो ये पावर्स को कैसा कहते हैं? एब्सोल्यूट पावर्स। आप पूरा लिखते जाना। Absolute power means power without any kind of restrictions. So this is one of the another feature of a monarchy, absolute monarchy. फिर पावर ट्रांसफर कैसे होता था? फ्रॉम वन किंग टू अनदर किंग। पावर ट्रांसफर कैसे होता था? हेरिडिटरी। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन मेरिट। द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग यूज्ड टू इनहेरिट द किंगडम। इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर। जो एल्डेस्ट सन होता है फैमिली का, है ना, वो उसको सारी लीगेसी मिलती है। तो किंग का पावर ट्रांसफर कैसे होता था? हेरिडिटरी। देयर वर नो restrictions on the any kind of power of the king. So here in absolute monarchy king is law. इसको क्या कहते हैं? rex lex। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो जो किंग ने कह दिया वो लॉ हो गया, दैट इज मींस किंग इज लॉ। लेकिन जब मॉडर्न फॉर्म एब्सोल्यूट मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाएगी, देन लॉ इज किंग, रेक्स लेक्स टू लॉ इज किंग। इसमें मैं अभी आता हूं। तो पहले हम एब्सोल्यूट मोनार्की देखते हैं। इट मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ सिंगल पर्सन मोनार्क विल रूल। नाउ दिस सिंगल पर्सन विल बी हैविंग ऑल द थ्री पावर्स इन्वेस्टेड इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। द टाइटल ऑफ मोनार्क विल बी ट्रांसफर्ड हेरिडेटरी। यहां पे कोई भी टाइप का मेरिट सिस्टम नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा। द टाइटल इज पास थ्रू अससेशन व्हेन द एग्जिस्टिंग मोनार्क डाइज और एब्डिकेट। दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी। देयर आर लो लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द किंग। His powers are absolute, means without any restriction. फिर वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स आने लगी। तो वर्ल्ड ओवर जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स आने लगी, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वर्ल्ड ओवर ऐसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई विच एंडेड द मोनार्की एंड एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। तो जब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड होती है तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की अब किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है तो किंग होता है वो रियल हेड पहले होता है, अब क्या हो जाएगा? वो नॉमिनल हेड हो जाएगा। नाउ ऑल पावर्स are with the elected government, and the elected government, particularly PM plus council of minister, will exercise the power in the name of nominal head, that is king. Now king's power पहले उसके कैसे थे? एब्सोल्यूट थे। अभी इसके पावर्स कैसे हो गए? रेस्ट्रिक्टेड। king's powers are restricted by the constitution. Now king will exercise all the powers which it is having, particularly the executive powers. He will exercise according to the constitution. तो उसके powers कैसे हो जाएंगे? restricted by the constitution. तो ये monarchy कैसी हो जाती है? constitutional monarchy कहते हैं इसको। तो absolute monarchy after the French Revolution और the democratic movements across the world जब होने लगे तो किस में ट्रांसफर हो गया? constitutional monarchy में हो गया। अब ये ट्रांजिशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। पहले क्या होता था? किंग होता था। तो किंग को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाती थी, एक ग्रुप होता था, इसको कहते हैं काउंसिल। इसमें पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। तो जो आम जनता की प्रॉब्लम्स होती थी ये किंग को पास ऑर्गेनाइज तरीके से उनके ग्रीवेंसेस पहुंचे, इसलिए लोगों के प्रतिनिधित्व वाली ऐसी काउंसिल बनाई जाती थी। फिर जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती गई, जैसे ब्रिटेन में, उसी तरह से किंग के पावर्स क्या होते गए? कम होते गए और इसके पावर्स बढ़ते गए। आगे जाके ये काउंसिल क्या बन जाती है? लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट। फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी को इसमें मेजोरिटी मिलती है वो क्या बनता है? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो किंग है
नाउ हिज पावर्स आर रेस्ट्रिक्टेड आफ्टर द डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स और आफ्टर द ट्रांजिशन। तो ये कैसा हेड हो जाएगा? नॉमिनल हेड हो जाता है। और पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इलेक्टेड, ये कैसे हेड हो जाएंगे? ये रियल हेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रियल हेड हो जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो ये जो रियल हेड था ये अभी नॉमिनल हेड हो गया, और जो एब्सोल्यूट मोनार्की है अभी ये किसमें ट्रांजिशन कर गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो एज ऑफ नाउ प्रेजेंट डे वर्ल्ड में ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो अर्लियर जैसे मुगल्स इन इंडिया, अशोकन मौर्यन अंपायर था, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। दिस वाज द मोस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की वाज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर। आज के टाइम पे बहुत कम जगह पे एब्सोल्यूट मोनार्की है, व्हिच यू कैन फाइंड इन ओमान। इट इज स्टिल रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट रूलर कॉल्ड सुल्तान। ठीक है, द in absolute monarchy his powers are unlimited, not bounded by the any constitution or anything. No control or restriction on the power of the king. So rule of king or law is king. Now what were the criticism? ऐसे form of government citizens की rights violate होती थी, उनकी liberties कभी भी violate होती थी। ठीक है, और रेन कई बार ऑपरेसिव हो जाता। नाउ आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी दिस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की गॉट कन्वर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के एज प्रेजेंट टाइम पे अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम, भूटान, जापान, थाईलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्पेन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की का ही मॉडिफाइड वर्जन है। सो बोथ आर इन कॉन्टिनम, कोई सेपरेट चीज नहीं है। ठीक है, this means a nation recognizes a monarch but expects monarch to abide by a laws and nation's constitution. Elected leaders and parliament के पास real power आ जाएगा, monarch रहेगा but symbolic रहेगा to maintain the customs and traditions of the country. So this is the difference. और सबसे बड़ा difference क्या होगा? पहले absolute monarchy में क्या था? King is law. Now law is king. Earlier rule of king था, now law is the king और rule of law हो गया। ठीक है, तो these are the examples of constitutional monarchy. Powers of monarch gets converted from absolute monarch. This is the British family of monarch. Earlier they had absolute power, but with the emergence of democracy and constitution, this monarch has become the constitutional monarchy. Now their powers are restricted. Now they are the nominal head, and real powers in Britain has been transferred to PM and Council of Minister. So इसमें ये जो लिंक है एक बार आप देख लेना, ये ब्रिटिश हिस्ट्री है। These are the 6 famous kings and queens of Britain. Okay, so starting with the William the Conqueror in 1066. This is the example of absolute monarchy. At that time किंग के पावर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, पोजीशन यूज्ड टू ट्रांसफर हेरिडिटरी। और जो अभी हमने लेटेस्ट फैमिली देखा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। ब्रिटेन के किंग थे हेनरी इन 14th सेंचुरी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। देन हेनरी 15th सेंचुरी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। देन विक्टोरिया, यहां से ब्रिटेन का ट्रांजिशन स्टार्ट होगा एब्सोल्यूट मोनार्की में से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज नथिंग न्यू, इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड बोथ आर इन कॉन्टिन्यूम, बोथ आर नॉट सेपरेट। ठीक है, सो नाउ द प्रेजेंट किंग जो ये थी एलिजाबेथ टू, यहां से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट हो जाती है। देन चार्ल्स टू, द लेटेस्ट किंग, ओके, ही वाज प्रिंस टिल द एज ऑफ 73। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनार्की बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसलिए कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ब्रिटेन डेमोक्रेसी है लेकिन मोनार्की भी है, ऐसे कैसे? ब्रिटेन डेमोक्रेसी है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। रिपब्लिक मींस हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। यहां पे हेड ऑफ स्टेट कौन है? किंग। हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडिटरी। सो ब्रिटेन इज डेमोक्रेसी बट नॉट रिपब्लिक।
Britain is democracy and constitution monarchy. India is republic. India is democracy but republic because head of state that is president is elected. तो head of state अगर elected है तो country republic है, head of state elected नहीं है तो country क्या हो जाता है, monarchy हो जाता है. ठीक है, तो ये हमने देखा. Now we will see aristocracy, oligarchy and tyranny. ये हम देखते हैं. ठीक है, तो रूल बाय वन, रूल बाय फ्यू. इफ वन पर्सन इज रूलिंग एंड फ्यू पर्सन इज रूलिंग, दिस इज कॉल्ड मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी. अब यही मोनार्की किस में कन्वर्ट हो जाती है, टिरैनी में. कब, व्हेन जो रूलर होता है उसका अगर एम कॉमन इंटरेस्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनार्की. दिस इज द ट्रू फॉर्म. But sometimes ruler, rather than taking decisions in public interest, it will take decision in personal interest. He has nothing to do with the people's welfare. उसका खुद का वेलफेयर ही उसका एम हो जाता है रेन करने का. तो ऐसी कंडीशन में जब रूलर अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए रूल करता है तो ये मोनार्की किसमें कन्वर्ट हो जाती है, टिरैनी में. तो बोलते हैं ना कि रूलर टायरेंट हो गया है. क्यों टायरेंट हो गया है, पावर एक ही पर्सन के पास है लेकिन वो पावर का इस्तेमाल खुद के इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए करता है. मोनार्की में जनरली मोनार्क पावर लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है. तो ये ट्रू फॉर्म है, ये इसका परवर्टेड फॉर्म हो जाता है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म हो जाता है टिरैनी. उसी तरह से सोसाइटी में जब कुछ लोगों के पास पावर होता है तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं. लेकिन ये कुछ लोग जब इस पावर का इस्तेमाल अपने पर्सनल इंटरेस्ट करने के लिए कर जाते हैं तो यही एरिस्टोक्रेसी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है. सो इसको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दिस इज द ट्रू फॉर्म एंड दिस इज द परवर्टेड फॉर्म. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, रूल बाय वन, रूल बाय फ्यू. तो जब ये अपना पब्लिक इंटरेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट में रूल करते हैं तो ये मोनार्क है. लेकिन जब इसी का ही ये पर्सनल इंटरेस्ट या प्राइवेट इंटरेस्ट में रूल करने जाते हैं तो ये ट्रू फॉर्म का ये करप्ट वर्जन है. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टिरैनी में कन्वर्ट हो जाता है. एरिस्टोक्रेसी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है. तो अभी हमने यहां तक देखा है, हम अभी इसके आगे का देखते हैं. अभी देखो, मोनार्की मतलब पावर किसके पास है, एक ही पर्सन के पास है लेकिन वो रूल किस लिए कर रहा है, अपने पब्लिक इंटरेस्ट करने के लिए. जब वो प्राइवेट इंटरेस्ट करने के लिए रूल करता है तो यही मोनार्की किस में कन्वर्ट हो जाती है, टिरैनी में. अब ये टायरानी डिक्टेटरशिप में कंट्रोल हो जाती है. कब, जब वो मोनार्क किसी की सुनना ही बंद कर देता है, उसकी जो स्मॉल कोटरी होती है उसकी भी बात नहीं सुनता है, उसका जैसा मन चाहेगा वो वैसे पावर का इस्तेमाल करेगा. तो वो कैसा हो जाता है, डिक्टेटर हो जाता है. वही मोनार्क gets converted into dictatorship because he is not bounded by religion, he is not bounded by ethics, he will exercise the power according to his whims and fancies. तो टायरानी किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है. यही मोनार्क जब अपने पावर का इस्तेमाल लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. टोटलिटेरियन, और इसके मैं आगे और भी आपको एग्जांपल दूंगा. उसी तरह से जब पावर कुछ लोगों के पास होता है इसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज होता है. जब कुछ लोग वही पावर का इस्तेमाल अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए करते हैं तो इसको हम ओलिगार्की कहते हैं. फिर यही कुछ लोग जब किसी की सुनना बंद कर देते हैं तो इसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं. फिर यही कुछ लोग अगर सारे सोसाइटी में सिटीजन्स हैं, जो भी लोग हैं, उनकी लाइफ को, वो कैसा कपड़ा पहनेंगे, वो कैसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसके मैं सारे एग्जांपल्स देता हूं, अभी आप इसका लिंक कर लीजिए. तो इस सीक्वेंस में पावर का मिसयूज बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे आप एरो ड्रॉ करेंगे नीचे, इस सीक्वेंस में पावर का मिसयूज बढ़ता जाता है. यहां से सबसे ज्यादा पावर का मिसयूज टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है. ठीक है, तो अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको. ठीक है, मोनार्क
अन ओलिगार्क, पावर एक के पास है, पावर कुछ ही लोग के पास है, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में मेन चीज हम ये नहीं देखेंगे कि पावर किसके पास है, पावर एक के पास भी हो सकता है, फ्यू के पास भी हो सकता है, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल जिसके पास भी पावर होगा वो किसी की सुनेगा नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, यूज ऑफ पावर, है ना, एब्सोल्यूट अथॉरिटी उसके पास होगी पावर का ओवर द पॉलिटिक्स एंड पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, किम जोंग ऊ टू, तो यहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है नॉर्थ कोरिया में, तो डिक्टेटर बन गया है। फिर यही डिक्टेटर क्या करेगा, जब लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने लगेगा कि हेयर कट एक पर्टिकुलर तरीके से होना चाहिए, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, कैसा कपड़ा पहनेंगे, कैसा खाना खाएंगे, क्या काम करेंगे, मार्केट में किस प्राइस पे गुड्स बिकेंगे, सोसाइटी में किस तरीके से रेगुलेशन बढ़ जाएगा। डे टू डे लाइफ ऑफ द सिटीजन इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, फ्रांस नेपोलियन बोनापार्टे। अब ये डिक्टेटरशिप मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, जब किसी भी कंट्री की मिलिट्री मतलब फ्यू पीपल या एक मिलिट्री डिक्टेटर गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेता है और उसके पावर पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप। एंड जनरली दे कम थ्रू मिलिट्री कूप, और जो छोटा सा ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिलिट्री जुंटा, इसको कहते हैं मिलिट्री जुंटा। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के आप एग्जांपल्स देखेंगे, चिली, ऑगस्टो पिनोचेट, he is the person, युगांडा ईदी अमीन, दे आर दी डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब जो उसके पावर्स पे किसी का कंट्रोल नहीं है। यही डिक्टेटर फिर आगे जाके इनका अगर रेन लंबे समय तक रहेगा तो यही डिक्टेटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जब इनका रेन ज्यादा लंबा रहता है। These are the examples of military dictatorship. This is Mayan. Mayan is a classical example of dictatorship versus democracy. यहाँ की ये लीडर है आंग सान सू की। शी रिप्रेजेंट्स द डेमोक्रेसी इन म्यांमार। इनके ओपोजिशन में मिंग आंग यांग, शी इज द मिलिट्री लीडर। तो म्यांमार इज अ कंट्री वेयर पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम फ्यू पीपल और द मिलिट्री और द डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, ये स्विंग होता रहता है। तो आप जैसे देखेंगे म्यांमार में 1 Feb 21 को मिलिट्री कूप डी टेट होता है। मिलिट्री कूप डी टेट में मिलिट्री जो रूलर्स होते हैं, जो मिलिट्री एलाइट्स होते हैं, मिलिट्री के हायर ऑफिसर्स होते हैं, वो डेमोक्रेटिक लीडर से पावर ग्रैब कर लेते हैं। इस इवेंट को कहते हैं मिलिट्री कूप डी टेट। रिजल्ट, सिविलियन रूल एंड हो जाता है, री इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री रूल फॉर द थर्ड टाइम। वहां की जो ये लीडर थी डेमोक्रेसी की, उनको डिटेन करके डिपोज कर दिया जाता है। उनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और 24 मिनिस्टर्स और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी डिपोस्ट कर दिया जाता है। एंड जो मिंग आंग यांग है कमांडर इन चीफ, ही ग्रैब्स द पावर। सो दिस इज हाउ मिलिट्री जुंटा विल कैप्चर द पावर इन म्यांमार एंड एस्टैब्लिशेस डेमोक्रेसी एंड एंड्स establishes dictatorship and ends democracy. I will show you a small video ki how this military junta will grab the power. Agent 68, Vaitara team, luxury Jammu collect.
So this was the example of military junta which we have seen. This is the example of Africa, where there in several countries there are military coups and establishment of dictatorship. तो मेन चीज क्या होता है कि ये कॉन्टिनम में होता है, तो कुछ लोग पावर ग्रैब करते हैं मिलिट्री के, फिर लेकिन जब ये किसी की कंट्रोल में नहीं होते हैं और वो किसी की सुनना बंद कर देते तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप जब लंबे टाइम तक रहेगी देन दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ सिटीजन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो जाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडोल्फ हिटलर, जर्मनी। ठीक है, तो टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जिनके पास पावर होता है उनके ऊपर किसी का कंट्रोल तो नहीं होता है, डिक्टेटरशिप के एक आगे का स्टेज है। और जिनके पास पावर होता है दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग ईच एंड एस्पेक्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ सिटीजन। द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ एडोल्फ हिटलर, which in which Hitler controlled all aspects of all the lives of citizen. Same thing is in China. In China also, particular party, that is People's Republic Party of China, has established a totalitarian form of government because it starts controlling the life of the all aspects of the Chinese citizens. So these are certain examples of the totalitarian form of government. Totalitarian form of government will control religion, economy, education, family, media, everything, all aspects of life of citizen, all institutions of the society, everything is controlled by the state in totalitarian form of government. So people cannot see, people cannot speak what they want, people cannot hear what they want. Everything will be determined by the state. There is no freedom of speech. All aspects of society are controlled by the state. So state exercises total control on the people. So totalitarian regime has been established after World War in Germany, Italy and Soviet Union. So these are the examples we have seen. And it is also a form of government. Here power is centralized either under a single person or the ruling party. Totalitarian regime government will control all the aspects of the lives of citizen. There is complete centralization of power and government holds absolute power. There is no judiciary, neither there is any media who can criticize the government. Okay, so these are the examples of the totalitarian form of government. तो जब डिक्टेटर होते हैं वो लंबे टाइम तक पावर में रहते हैं, तो यही डिक्टेटरशिप किस में कन्वर्ट हो जाती है, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। आयुषी इज आस्किंग अफगानिस्तान इज टू एंड टोटलिटेरियन टू एंड अदर कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट, सीरिया। यस आयुषी, you are very correct. The Taliban government in Afghanistan is a totalitarian form of government because they will determine the dress the women will have to wear, that is burqa. Only one religion can be there, Islam. What kind of language, what kind of food is prohibited or eaten, everything is controlled by the state. Very good, Ayushi. So Afghanistan is now, as of now, is an example of the totalitarian form of government. These are world some of the biggest dictator whose dictatorship got converted into totalitarianism because of they were continuously in the power over the long period of time. Stalin, Hitler, Mussolini. Okay, so there is complete censorship, dictatorship, there is no freedom and there is complete propaganda. The party or the ruler will have a particular ideology. According to that ideology, everything, religion, society, market, everything will be governed. Okay, so you can read this. It's like that in totalitarian form of government. If you are not with us, you are against us. There is no room for difference of opinion also in totalitarian form of government. Whether you like it or not, you have to always agree with the state. So now we come to democracy. We have completed all these things. Now we will come to democracy. In democracy, we will see parliamentary system and presidential system. Shall I move ahead with this class? Any doubt on your confirmation? I will start. Lecture is slow, fast, it's okay.
Any feedback? You want to increase? You want me to increase my speed, or it's okay? इट्स ओके ना रचना? ओके सुरभि, चलो। नाउ हमने देखा था पावर किसी के पास नहीं है तो एनार्की एक के पास है तो मोनार्की, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाती है विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देन वी हैव सीन एरिस्टोक्रेसी। नाउ वी विल सी व्हेन ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी इज हैविंग द पावर, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होता है? पीपल के पास होता है। अब ये डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डिस्टिंक्शन किस चीज पर आधारित है? एनी आइडिया? What is the basis of distinction between direct democracy and indirect democracy? See, who has power? इस स्टेज पे हमने क्या सवाल पूछा था? Who has power? तो जवाब था all। तो ये सिस्टम कैसा हो गया? डेमोक्रेसी। नाउ क्वेश्चन इज हाउ दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड। लिखते जाना है हाउ दिस पावर इज, टीचर के साथ लिखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है। हाउ दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड। नाउ इन डेमोक्रेसी, in direct democracy, who has power? People. And people are themselves exercising their power. Such form of system is called direct democracy. In indirect democracy, who has power? People. But people are themselves not exercising the power. People will elect their elected representatives. And their elected representatives will exercise the power of people. Elected representatives here I mean MPs and MLAs, MLAs at the state level and MPs at the central level. तो जिसके पास पावर है वही पावर का एक्सरसाइज करते हैं, जिसके पास पावर है वो उस पावर का खुद एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो अपना पावर किसको दे देते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दे देते हैं। दिस विल कंस्टिट्यूट द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एंड दे विल एक्सरसाइज द पावर on behalf of people. They themselves do not have the power, they have derived the power from the people. Example, ट्राइबल सोसाइटीज। जब भी कोई लॉ बनाना है तो ट्राइब के कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 200-300 लोग, और कानून बना देंगे। अर्सवाइल स्विट्जरलैंड, एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट इन ड्यू टाइम societies and countries became large. Today in India we have around 140 crore people. पॉपुलेशन 140 करोड़ पीपल। अब अगर आपको लॉ बनाना है तो ईच एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट टेक वोट ऑफ 140 करोड़ पीपल, सो इट्स अ ह्यूज मासिव एंड इम्प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। तो जब कंट्री बहुत बड़ी हो जाती है तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट प्रैक्टिकेबल। सो व्हाट विल डू दिस पीपल, 140 करोड़ पीपल विल इलेक्ट 545 MPs of Lok Sabha and approximately 250 MPs in Rajya Sabha. So approximately total इसका होता है 800. So this 800 people will exercise the power on behalf of 140 करोड़ people. और जब भी लॉ बनाना है तो हमको 140 करोड़ लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा, ये 800 लोग ही मिलकर लॉ और कानून बना देंगे। तो एज ऑफ नाउ जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, इंडिया, यूके, यूएसए, all modern democracies will be having indirect form of democracy because direct form of democracy is not viable. So this is the exact distinction between direct democracy and indirect democracy. Now we will see indirect democracy. ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये दो टाइप की होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? एनी आइडिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में guys, any idea? The distinction between
parliamentary system and presidential system will depend on relationship between two organs of government, not tiers of government. कौन से ऑर्गन? एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर. यहां पे जुडिशरी नहीं है. किसी भी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, आप क्या देख, उस देश में क्या देख के बताओगे? उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच में रिलेशंस क्या है. फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल सिस्टम यू विल फाइंड इन यूएसए. तो यूएसए में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देख के आप बताओगे कि वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम. एंड इन इंडिया यू विल फाइंड पार्लियामेंट्री सिस्टम अपार्ट फ्रॉम यूके. तो क्या डिफरेंस होता है? देखो, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लेकिन इन दोनों ऑर्गन के बीच में ओवरलैपिंग है. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में क्या है? ये ओवरलैपिंग है. ये ओवरलैपिंग मैं अभी समझाता हूं. लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है. ये डिफरेंस है. अभी देखो, ध्यान से देखना सारे बच्चे. यहां पे इंडिया में लेजिस्लेचर में क्या है? एमपी. और ये ऐसे एमपी है जो मिनिस्टर है, और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है. अनशेडेड पोर्शन इन एग्जीक्यूटिव. तो ये शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब पीएमएन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो in this shaded portion there are MPs but who are also ministers, and these are MPs but who are not ministers. unshaded portion में, shaded portion में MPs है but ये ministers है. तो इसकी वजह से क्या होता है? यहां पे ड्यूअल मेंबरशिप है. ड्यूअल मेंबरशिप का मतलब वन पर्सन इज द मेंबर ऑफ two different organs at the same time. For example, Amit Shah, he is an home minister. Being an home minister is the part of political executive, and he is also an MP from Lok Sabha, so he is a part of legislature also. So as an MP he will represent legislature, but as an minister he will represent the political executive. So Amit Shah ji, he is the member of both the organs at the same time. So these people enjoy dual membership. They are members of both executive and legislature at the same time. But in presidential system you will find that वहां का जो एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट प्लस हिज, वहां पे अमेरिका में मिनिस्टर्स को सेक्रेटरीज कहा जाता है. दे आर द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर. So either you are the member of legislature or you are the executive. So you will find here single executive. What you will find here? Single executive. So here you will find fusion. So what is the relation between two organs? एक तो है fusion और यहां पे क्या है? separation between two organs. ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे. इसके अलावा और एक डिफरेंस है, वो हम अभी आगे देखते हैं. दूसरा डिफरेंस समझने के लिए हमको गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा. पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम क्या देखेंगे? गवर्नमेंट फॉर्मेशन. अगर ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन हम समझ गए, सरकार कैसे बनती है, तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस समझ पाएंगे. यहां पे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ हम इंडिया ले लेंगे, और ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है हम फॉर एग्जांपल यहां पे लेंगे यूएसए.
गवर्नमेंट फॉर्मेशन मतलब रियल पावर किसके पास है? इंडिया में रियल पावर किसके पास है? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पावर में कैसे आता है? अमेरिका में गवर्नमेंट फॉर्मेशन का मतलब क्या है? रियल पावर वहां किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट वहां पे पावर में कैसे आते हैं, हम ये देखेंगे। अभी इंडिया में जो हमारी पार्लियामेंट है उसके दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा का कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, खाली लोकसभा का रोल है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। कैसे? कि जब भी इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी 2024 में मोदी जी पीएम बनना है, तो इलेक्शन किस हाउस के होंगे? लोकसभा के। तो जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। इस जनरल इलेक्शन में जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, कौन सी मेजोरिटी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% ऑफ द टोटल। मतलब लेजिस्लेचर की 100 सीट है तो सरकार बनाने के लिए आपको 100 में से 51 सीट्स चाहिए, 50% ऑफ टोटल। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा वो क्या बनेगा? पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कब बनेंगे? व्हेन इट विल प्रूव व्हाट? एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा। So PM and Council of Minister is called executive. Lok Sabha represents which organ of the government? Legislature. So executive is coming into power by proving majority in legislature. So the executive organ of the government will be responsible and accountable to legislature, because executive comes into power by proving majority in legislature. It is for this reason executive will remain in power till it enjoys majority in legislature, till day. The day executive does not enjoy its majority in legislature, the executive will fall down, government गिर जाएगी। तो executive comes into power by proving majority, because PM and Council of Minister जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्होंने लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव की है, तो executive is responsible to legislature। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल नंबर 75 है। ये आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आर्टिकल 75 क्या कहता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? एग्जीक्यूटिव। लोकसभा रिप्रेजेंट विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? legislature. So article number 75, by making council of minister collectively responsible to Lok Sabha, makes executive responsible to Lok Sabha, and by making executive responsible to Lok Sabha, article number 75 establishes parliamentary system in India without mentioning the term parliamentary system. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का अभी आप डेफिनेशन बनाओ। पार्लियामेंट्री सिस्टम मींस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इंडिया में ये काम कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल नंबर 75। बाय मेकिंग पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लोकसभा रिप्रेजेंट द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सो बाय मेकिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, आर्टिकल नंबर 75 मेक्स एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, एंड बाय मेकिंग एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, आर्टिकल नंबर 75 एस्टैब्लिशेस पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया विदाउट मेंशनिंग द टर्म पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमने एक डेफिनेशन देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम का, क्या था? फ्यूजन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। पढ़ के आ रहे हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गन्स। पहला रिलेशन क्या है? फ्यूजन। अगर फ्यूजन होगा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दूसरा रिलेशन हमने क्या कहा? कि अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अगर ऐसा है तो दिस इज द डेफिनेशन। तो ये हो गया डेफिनेशन नंबर 2। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड व्हेन डेफिनेशन नंबर 1 मींस डेफिनेशन नंबर 1 फ्यूजन, दोनों के बीच में फ्यूजन है। तो ये हमने दो डेफिनेशन देखे। अभी हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रियल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। अब ये ध्यान से समझना, अमेरिका का जो लेजिस्लेचर है उसको हम क्या कहते हैं? कांग्रेस। अब ये बाई कैमरल है तो इसके दो हाउस है, एक है सीनेट, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? सीनेट, और दूसरा क्या है?
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अमेरिका में ना ही सीनेट ना ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लेज एनी रोल in government formation, unlike parliamentary system where lower house only Lok Sabha will play role in government formation. ठीक है? Yes, Rachna, you are right. In parliamentary system, council of minister will be responsible to Lok Sabha specifically, and executive is responsible to Lok Sabha in general. Okay, Rachna? यू आर करेक्ट। अभी यहां पे लेजिस्लेचर विल प्ले रोल इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेजिस्लेचर डज नॉट प्ले एनी रोल इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। कैसे, अब देखते हैं। अमेरिका में रियल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इस इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा। अब अमेरिका में 50 स्टेट से 50 स्टेट से ये मेंबर्स जाते हैं इलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट को, इसलिए इन मेंबर्स को क्या कहा जाता है? इलेक्टर्स कहा जाता है। इंडिया में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। इंडिया में भी प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, बट इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में लेजिस्लेटर्स होते हैं, इलेक्टर्स नहीं। जो ऑलरेडी एमपी और एमएलएस है वही इसके मेंबर बन जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, उसके पास रियल पावर है नहीं, तो वो कोई मायने नहीं रखता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। अमेरिका में रियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो मेंबर्स है वो स्टेट से आते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं। अभी जिस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है इलेक्टोरल कॉलेज में, सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट क्या बनता है? प्रेसिडेंट। अब मेरे को यह बताओ, पावर में रियल हेड को आने के लिए कहीं भी लेजिस्लेचर में मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ी? नहीं, फिर भी पावर में आ गया। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर्स टू प्रूव मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर। ठीक है, विदाउट प्रूविंग मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज पॉसिबल। नाउ यहां पे प्रेसिडेंट मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। यहां पे लेजिस्लेचर की वजह से एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, इसलिए एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेकिन यहां पे एग्जीक्यूटिव विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर में लेजिस्लेचर में मेजोरिटी प्रूव करे बिना आया है। तो क्या एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर? नो। तो ये हो गया डेफिनेशन नंबर 2 प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब डेफिनेशन बनाओ, व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम? अगर आपको कोई पूछे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम मींस एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री सिस्टम मींस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अभी यहां पे देखो, डेफिनेशन नंबर 1, पार्लियामेंट्री सिस्टम मींस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में फ्यूजन है। यहां पे डेफिनेशन नंबर 2 मतलब दोनों ऑर्गन के बीच में सेपरेशन है। तो ये हमने डेफिनेशन बना दी है। खाली इन दोनों को समझो, सारा का सारा चैप्टर आ जाएगा। अभी देखो मेरिट्स डिमेरिट्स आएंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी मेरे को बताओ, स्टेबल गवर्नमेंट कहां पे होगी? स्टेबल गवर्नमेंट की सरकार एक बार बन जाए तो काफी स्टेबिलिटी के साथ काम करेगी। स्टेबल गवर्नमेंट कहां होगी? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। वेरी गुड आयुषी, यहां पे स्टेबल गवर्नमेंट होगी। क्यों? क्योंकि सरकार एक बार बन जाती है तो 4 साल तक गवर्नमेंट पावर में रहेगी, क्योंकि मेजोरिटी यहां पे हो ना हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट हो उसकी पार्टी अगर माइनॉरिटी में भी है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पे जिस दिन मेजोरिटी गई, गवर्नमेंट गई, तो ये इसका मेरिट हो गया। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम का डीमेरिट हो जाएगा। क्या डीमेरिट हो जाएगा? अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट। दूसरा, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव। यहां पे
इससे पहले हम ये देखते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है। अगर आपको कोई सवाल पूछता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज्यादा अच्छा है या पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉजिक से क्या बताओगे, सोच के बताओ। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में वेरी गुड आयुषी, क्यों? ये देखो, गवर्नमेंट स्टेबल होगी, 5 साल तक रहेगी, तभी तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करेगी। तो इसका बाय प्रोडक्ट है, यहां पे अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए ये अच्छा है। अनस्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए दिस इज बैड, है ना। तो सारे मेरिट्स डिमेरिट्स यहीं से आ जाएंगे। फिर यहां पे ये ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव कैसे? प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम टाइम। हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे सिंगल एग्जीक्यूटिव, सॉरी यहां पे सिंगल एग्जीक्यूटिव है और यहां पे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। यहां पे पीएम इज द रियल हेड एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स है, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट कल चाहे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फाइनेंस के प्रोफेसर को फाइनेंस मिनिस्टर बना देता है, जरूरी नहीं है ही हैज टू बी द सीनेटर। लेकिन इंडिया में पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे हैव टू बी दी एमपी, सो दे आर इलेक्टेड। लेकिन अमेरिका मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज आर नॉट इलेक्टेड, ये डिफरेंस है। तो आज एक आपको मैं होमवर्क देता हूं, घर पे जाना, घर पे जाके एक बार चेक करना, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये 2 डेफिनेशन दिमाग में रखना है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, अभी ये हमने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डेफिनेशन 1, ये इसका डेफिनेशन 1 ही है, सॉरी, और डेफिनेशन 2, एक जगह फ्यूजन है, एक जगह सेपरेशन है। तो हमने यहां तक कंप्लीट किया। इसके बाद का अभी हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट्री सिस्टम 2 टाइप की होती है, और फिर हम लेक्चर एंड करेंगे क्योंकि आज के लिए कंटेंट इतना बहुत हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम 2 टाइप की होती है, एक प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट और दूसरा कैबिनेट गवर्नमेंट। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? देखो, एक होता है पीएम और एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए मेजॉरिटी चाहिए लेजिस्लेचर में। अब कई बार कैसी सिचुएशन आती है कि सिंगल पार्टी, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, उसी को ही पूरी मेजॉरिटी मिल जाती है, सिंगल पार्टी रूल। और कई बार सिंगल पार्टी को नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन गवर्नमेंट में एक लीड पार्टी होती है, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे एमएमएस, यूपीए 1 + 2, है ना। इवन जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, एनडीए के टाइम पे, वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अभी के टाइम पे जो मोदी गवर्नमेंट है, वाजपेयी गवर्नमेंट, अभी के टाइम पे जो मोदी गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है। अब मेरे को यह बताओ, यूपीए 2 इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दिस इज द नेम ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट लीडेड बाय बीजेपी, एंड यूपीए इज द नेम ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट whose leader was Congress. आयुषी, is it clear? हाँ, अभी मेरे को ये बताओ, ये दोनों सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में
प्राइम मिनिस्टर विज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन सी सिचुएशन में पीएम का पावर सबसे पीक पे होगा कंपेयर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? एनी आइडिया? पीएम का पावर सबसे ज्यादा कौन से सिस्टम में रहेगा? जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी या कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे? क्या लगता है आपको? वेरी गुड आयुषी, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। अब यहां पे पीएम का पावर ज्यादा है विज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ऐसी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को आप कैसी गवर्नमेंट कहोगे? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, बिकॉज ऑल पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन प्राइम मिनिस्टर। एज ऑफ नाउ नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कुछ भी पावर नहीं है। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जैसे कांग्रेस के टाइम पे थी, मनमोहन सिंह के टाइम पे थी, तो जो कोलिशन गवर्नमेंट के सपोर्ट पे बनती है तो उनके लीडर्स को वो मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे डी राजा है ना, वो डीएमके पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था तो उनका एमपी ही मिनिस्टर बना था। तो विज़ काउंसिल, यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, इसलिए इसको कैसे कहते हैं? कैबिनेट गवर्नमेंट। और इसको क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। नाउ वेदर द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्ट्रियल और कैबिनेट, इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जब एक्चुअल ऑपरेशन होता है, इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं और गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, तब ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है और ये कैबिनेट गवर्नमेंट है। लिख लो इसको, और इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। देन वी विल एंड द लेक्चर बिकॉज आई थिंक इट इज टू मच कंटेंट। तो हमने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम आर द टू फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है? नीचे लिखो कंक्लूजन। इंडिया हैज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हम वर्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज नहीं करते। क्या करते हैं? आंसर्स में क्या लिखोगे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट की जगह क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओवरलैपिंग है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दो ऑर्गन्स के बीच में सेपरेशन है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है। कौन सा आर्टिकल इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है? वो है आर्टिकल नंबर 75। अभी आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आपको बैर एक्ट पढ़ना है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप एक वेबसाइट है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की, या पीएम बख्शी एक बुक है जिसमें बैर एक्ट है, आर्टिकल नंबर 75 पढ़ना है और समझना है कैसे आर्टिकल नंबर 75 इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है। ठीक है। तो आर्टिकल 1 एस्टैब्लिशेस फेडरल सिस्टम इन इंडिया विदाउट मेंशनिंग द टर्म फेडरल। आर्टिकल 75 एस्टैब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया विदाउट मेंशनिंग द टर्म पार्लियामेंट्री सिस्टम इन आर्टिकल नंबर 75। और 75 कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है? बाय मेकिंग एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? Relationship between two organs will determine whether the form of government is parliamentary system or presidential system. Definition or meaning number 1. Executive is responsible to legislature. Executive is not responsible to legislature. Fusion between two organs. Here separation. तो theory of separation of power यहाँ पे कम है क्योंकि fusion है। Theory of separation of power कहाँ पे ज्यादा है? Presidential system में ज्यादा है। ठीक है। तो हमने फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम पढ़ा और पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ा। तो डिस्टिंक्शन क्या है? ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल वर्सेस यूनिटरी किस चीज पर आधारित है? रिलेशनशिप बिटवीन टू टीयर्स, सेंटर एंड स्टेट। यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे टू टीयर्स है, यहाँ पे टू ऑर्गन्स है। कौन से टू टीयर्स है? सेंटर एंड स्टेट। कौन से दो ऑर्गन्स है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यहाँ पे कौन सा टीयर नहीं है? लोकल। यहाँ पे कौन सा ऑर्गन नहीं है? जुडिशियरी। यहां पे इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। ये इंडिया में फेडरल सिस्टम बनाता है, ये इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है। आर्टिकल नंबर 1 फेडरल सिस्टम बनाता है, आर्टिकल नंबर 75 पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है। तो हमने ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कंप्लीट किया। एग्जाम में देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। 2015 में इस तरह का क्वेश्चन आया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है
इंडिया में क्यों है? तो क्या आंसर होगा इसका बच्चों? आंसर बताओ। वेरी गुड दिव्या, डी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स विच ऑर्गन? एग्जीक्यूटिव। लोकसभा रिप्रेजेंट्स विच ऑर्गन? लेजिस्लेचर। ठीक है, तो बाय मेकिंग एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, आर्टिकल नंबर 75 एस्टैब्लिशेस पार्लियामेंट्री सिस्टम। सेम क्वेश्चन 2017 में आया है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज हमने जो भी क्लास में कंटेंट पढ़ा है इट इज कंप्लीटली रिलेवेंट। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं तो ऐसे आ भी सकते हैं। इसको सॉल्व करो, क्या होगा आंसर? आयुषी, बी। यस, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट जुडिशरी। जुडिशरी तो पिक्चर में ही नहीं आता है। ठीक है, ये 2013 में भी क्वेश्चन आया है। ये पीपीटी मिल जाएगी, इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट हमने पढ़ा, ये भी यूपीएससी ने पूछा है। 2017 में क्वेश्चन है डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया है जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से। ये देखो 2017 में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्वेश्चन आया था। बच्चों ने, कुछ बच्चों को ये पता ही नहीं था कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी कंटेंट पढ़ा है, इट इज वर्ड टू वर्ड, ईच वर्ड एंड एवरी लाइन इज रिलेवेंट टू द यूपीएससी एंड आई हैव प्रूव्ड इट बाय शोइंग यू बाय द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ओके, so these questions you have to solve it. After this, in next lecture we will continue with the police state and welfare state. Okay, now class, if you have any doubt then you can ask me, otherwise we will end the lecture. For today it is enough. Yes, please. Okay, then we are ending the lecture. Thank you class, you can leave now.